Good morning, students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss the last topic on the transformation of sentence, that is from exclamatory to assertive. Okay, this is the topic. Before starting, I think all of you will be familiar with this word exclamatory. It is a type of sentence in which exclamation mark is there at the end, and it shows sudden feeling, emotions, etc. And assertive, that we have discussed in the last video. Okay, without any delay, let's start. First, we will take some examples of exclamatory sentence. For example, what a beautiful dress you have. Okay, this is an exclamatory sentence. Whenever you will be asked to transform this into assertive, you must choose a subject that is given in that sentence, that is here you. So when we change it into assertive, we must write the word you at the beginning, that is subject, you have a very beautiful dress. That's it. So in this way we can change any exclamatory sentence into assertive. Now other example that starts with this example was of starts with what. Now how. Okay, how fast she moves. This is also exclamatory sentence. This is symbol of exclamation, so it indicates that this sentence is of exclamatory. We will change this into assertive. See here, it is a subject for assertive sentence. She moves very fast. Is that clear? So now have the point. Whenever an assertive sentence starts with what or how, okay, then we choose a subject from that sentence. जैसे कि इसमें हमने you को चूज़ किया और इसमें she को, वो प्रनाउन ही होंगे या नाउन होंगे, तो उसको हम लोग चूज़ करेंगे और उसको सब्जेक्ट बनाएंगे अपने असर्टिव सेंटेंस का. ओके, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब. और वेरी वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज़ किया है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कब यूज़ करते हैं, सडन फीलिंग होता है. दैट्स वाई वी मस्ट यूज़ वेरी बिफोर दैट एडजेक्टिव. ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल. What a busy life she leads. What a busy life she leads. I think all of you can change this into assertive. Yeah, let's start how to transform it into assertive. We will use this word she as subject of assertive. She leads, that is verb, a
very busy life. That's it. Okay. So in these sentences, each sentence has verb और सब्जेक्ट या वर्ब दिए हुए हैं, और कोई ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब आइडेंटिफाइड ना हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग किस तरह से एक्सक्लामेटरी से असर्टिव करेंगे। तो वो पॉइंट हमारा होगा, इफ सब्जेक्ट और verb is not identified, then how we can transform that into assertive. For example, what a scene. What a scene. तो इस सेंटेंस में हमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, तो इस सेंटेंस में हम लोग इंट्रोडक्टरी इट यूज़ करेंगे। उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट, क्योंकि हम लोग इट से इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और ये हमेशा ही हम लोग प्रेजेंट में ही रखेंगे, पास्ट कभी नहीं करेंगे इसको। इट इज़ a very beautiful scene. That's it. Another example, what a hotel, मीन्स होटल की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इट इज़ अ हम लोग कह सकते हैं ग्रैंड होटल या वेरी बिग होटल, वेरी फेमस होटल, ऐसा कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सडन फीलिंग है। इट इज़ अ ग्रैंड होटल। ओके। और दूसरा पॉइंट है हमारा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट्स होते हैं ओ दैट, वुड दैट या अलास। If there is oh that या would that या alas, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे। तो इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट करेंगे, वर्ब करेंगे और आगे के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। और इसमें हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे विश। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। would that I had not wasted my money। इस सेंटेंस को हमें असर्टिव करना है, तो इसमें आई तो दिया ही हुआ है, तो इसी वर्ड को हम लोग एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आई विश आई, बाकी के सेंटेंस को हम लोग कॉपी कर लेंगे। आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। ये सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाएगा। या दूसरा सेंटेंस होता है, दूसरा एग्जांपल है, अलास शी डाइड सो यंग। शी डाइड सो यंग। इस सेंटेंस को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, कैसा फीलिंग ये शो कर रहा है। अलास वर्ड सैडनेस को, सॉरो को शो कर रहा है, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी इट के साथ स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वेरी सैड, सॉरी, दैट
She died so young. She died so young. ये हमारा हो गया assertive sentence. दूसरा फिर एग्जाम्पल देखते हैं ओ दैट से. ओ दैट आई वर अ किंग. ओ दैट आई वर अ किंग. तो इस सेंटेंस को भी हम लोग आई विश से स्टार्ट करेंगे. आई विश आई वर अ किंग. ये असर्टिव सेंटेंस हो गया. या फिर किसी सेंटेंस में ब्रावो, हुर्रा, वेल डन ऐसे एक्सक्लामेशन शो करने वाले वर्ड्स हों तो उसमें भी हम लोग इट इज़ मैटर ऑफ ये फ्रेज़ को यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट. इट इज़ मैटर ऑफ. ब्रावो है तो प्रेज़ होगा या गुड वर्क होगा. हुर्रा होगा इट इज़ मैटर ऑफ जॉय. ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं उसको भी असर्टिव में. सी सम एग्जाम्पल्स. ब्रावो, you secured highest mark. highest mark. इस सेंटेंस को हमें असर्टिव करना है. देन सी इट इज मैटर ऑफ प्रेज. मतलब उसको तारीफ कर रहे हैं हम लोग. प्रेज दैट यू secured हाईएस्ट मार्क. ओके. या फिर हुर्रा वी हैव ओन द मैच. हुर्रा वी हैव ओन द मैच. तो इस सेंटेंस को भी हम लोग इट इज़ मैटर ऑफ जॉय क्योंकि हुर्रा वर्ड ही शो कर दे रहा है दैट वी आर वेरी हैप्पी नो. तो इसमें भी हम लोग इट इंट्रोडक्टरी इट यूज़ करेंगे. इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट जो हमारा सेंटेंस था वी हैव ओन द मैच. Okay, that's it for today. Thank you. Have a nice day.